SSP انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش بورڈ کا انعقاد۔ قتل، اغوا، ڈکیتی سمیت 26 مقدمات زیر بحث آئے۔ افسران نے فریقین کو سننے کے بعد تبدیلی تفتیش سے متعلق احکامات جاری کیے۔ ناقص تفتیش ثابت ہونے پر متعدد تھانوں کے تفتیشی افسران کی سرزنش اور شو کوز نوٹس جاری کیے۔ SSP انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ دوران تفتیش میرٹ پر سمجھوتا کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تفصیلات کے لیے بات کریں کہ مجاہد لطیف سے۔ مجاہد بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، SSP انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش بورڈ کا انعقاد ہوا۔ تبدیلی تفتیش فرسٹ بورڈ میں ڈویژنل SPs کی شرکت ہوئی۔ تبدیلی تفتیش بورڈ میں زیادتی، اغوا، ڈکیتی، چوری اور فراڈ کے 26 مقدمات زیر بحث آئے۔ تبدیلی تفتیش بورڈ میں تفتیشی افسران اور فریقین نے اپنے موقف سے آگاہ کیا۔ مدعیہ حنیفہ بی بی اور عاشق علی قتل، خالد محمود اقدام قتل، جبکہ تجمل حسین اغوا کے مقدمات میں تبدیلی تفتیش کے لیے پیش ہوئے۔ مدعی انصب عظیم اور اکرام اللہ ڈکیتی، آصف شہزاد اور سرفراز خان چوری اور عبدالشکور چیک ڈسانر اور ناصر علی دھوکہ دہی کے مقدمات کی تفتیش تبدیلی کے لیے پیش ہوئے۔ بورڈ میں افسران نے دونوں فریقین کو سننے کے بعد تبدیلی تفتیش سے متعلق موقع پر احکامات جاری کیے۔ مقدمات میں ناقص تفتیش ثابت ہونے پر متعدد تھانوں کے تفتیشی افسران کی سرزنش اور شو کاز نوٹس بھی جاری کیے گئے۔ اس موقع پر SSP انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ دوران تفتیش میرٹ پر سمجھوتا کسی صورت برداشت نہیں ہے۔ شہریوں کو بروقت اور میرٹ پر انصاف کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ جی ٹھیک ہے، مجاہد اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین PCB ذکا اشرف کی زیر صدارت PSL گورننگ کونسل کا اجلاس ہوا ہے۔ PCB سپر لیگ کے ابتدائی چند میچز دبئی میں کروانے کا خواہاں ہے، مگر فرینچائز مالکان سارا PSL پاکستان میں ہی کروانا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے محکمہ داخلہ سے سیکیورٹی کے معاملات پر رائے بھی لی جائے گی۔ PSL گورننگ کونسل کا اگلا اجلاس 14 دسمبر کو ہوگا۔ اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ لاہور نیوز محمد اسامہ نے، مزید تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی اسامہ، اپڈیٹ کیجیے اجلاس کے احوال سے۔ جی بالکل، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کی صدارت آج نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں PSL فرنچائزز کے تمام جو ان کے ریپریزنٹیٹیو تھے وہ شریک ہوئے۔ اس میں یہ ڈسکشن ہوئی ہے پاکستان سپر لیگ کا جو آئندہ سیزن ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ابتدائی میچز دبئی میں کروانے کا خواہاں ہے، مگر فرنچائز مالکان سارا PSL پاکستان میں کروانا چاہتی ہیں۔ اس حوالے سے محکمہ داخلہ سے سیکورٹی کے معاملات پر رائے لی جائے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ اگر سیکورٹی کے ایشو نہ ہوئے تو سارا دیکھل پاکستان نہیں ہوگا۔ PSL گورننگ کونسل کا اگلا اجلاس 14 دسمبر کو ہوگا اور اسی میں حتمی فیصلے بھی متوقع ہیں۔ فرنچائزی مالکان کا کہنا تھا کہ بڑی مشکل سے PSL پاکستان میں منتقل ہوا، اب واپس دبئی لے کے جانا اچھا فیصلہ نہیں ہوگا۔ PSL پاکستان کا برانڈ ہے تو پاکستان میں ہی اس کے تمام میچز ہونے چاہیے۔ اس کے حوالے سے PSL تاریخوں کے حوالے سے رد کیے جانے کا امکان ہے۔ PSL کے لیے تاریخوں کو جنرل الیکشن کی وجہ سے تبدیل کیے جانے کا امکان ہے، کیونکہ PSL کا آغاز بھی 8 فروری سے ہو رہا ہے اور جنرل الیکشن کی تاریخ بھی 8 فروری ہے، تو اسی لحاظ سے یہ جو تاریخوں کا کلیش کر رہا ہے، سیکورٹی کے معاملات ہیں، تو اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ اور فرنچائز مالکان میں اتفاق ہوا ہے کہ محکمہ داخلہ سے سیکورٹی کے حوالے سے تمام تر معاملات طے کیے جائیں گے، ان سے رائے لی جائے گی۔ اگر سیکورٹی کے معاملات اسے خراب نہ ہوئے تو انہی تاریخوں میں پاکستان سپر لیگ کا انعقاد ہوگا، ورنہ دوسری صورت میں تاریخیں بھی آگے پیچھے کیے جانے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے جو پاکستان سپر لیگ کی تاریخیں ہیں وہ 8 فروری سے 24 مارچ تک رکھی گئی، جبکہ PSL کی جو سیزن 9 کی ڈرافٹنگ ہے وہ لاہور یا اسلام آباد میں کرایا جانے کا امکان ہے، اور PSL سیزن 8 کی ڈرافٹنگ کراچی میں ہوئی تھی، اسی لحاظ سے یہ ڈرافٹنگ لاہور میں ہونے کا امکان ہے، جبکہ PSL سیزن 9 کے براڈ کاسٹ ہے تو اسپانسر کے حوالے سے بھی فیصلہ آئندہ اجلاس میں ہوگا، اور آج ہونے والے اجلاس میں PSL کے تمام اسٹیک ہولڈر شریک تھے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد اسامہ، آپ نے تفصیل نگاہ کیا۔ بلیٹن میں بات کریں گے بڑھتی ہوئی اسموگ کے حوالے سے، تو بارش کے اثرات کم ہونے کے بعد اسموگ نے پھر سے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ آئندہ 5 سے 6 روز تک موسم خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ خشک موسم کے باعث اسموگ کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔
गुज़श्ता दिनों लाहौर में होने वाली बारिश ने स्मोक को पिछले कदमों पर धकेल दिया, जिसके बाद शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स काबिल इत्मीनान हद तक नीचे आ गया। बारिश के असरात खत्म होते ही स्मोक की अफरियत ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 284 की सतह तक जा पहुंचा है। सबसे ज्यादा AQI 421 शहर कायद-ए-आज़म पर रिकॉर्ड किया गया। डिफेंस फेज 8 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 रहा, जबकि शहर के दीगर इलाकों में भी आलूदगी की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 5 से 6 रोज तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। और अभी आपको बताएं कि शहर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में एक बार फिर इजाफा होने लगा है। शहरियों को खुश्क, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी जैसे मसाइल का सामना है। 2 रोज़ में शहर के 5 बड़े हस्पतालों में स्मोक से मुतासरा 2000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। फ़िज़ाई आलूदगी के मुज़र असरात से शहरी बीमार होने लगे। अस्पतालों में खुश्क, खांसी और सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा। 2 रोज़ में शहर के 5 बड़े हॉस्पिटल्स में स्मोक से मुतासरा 2000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। जना हॉस्पिटल में 900, म्यू अस्पताल 850, जबकि गंगाराम में 700 मरीज रिपोर्ट हुए। मुतअद्दिद मरीजों ने सर्विसेज और जनरल अस्पताल का भी रुख किया। डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्ला का कहना है कि स्मोक से मुतासरा मरीज फिर से अस्पताल में आना शुरू हो गए हैं। सांस की बीमारी में मुब्तला मरीज घरों से बाहर न जाएं। स्मोक से जल्दी इमराज में इजाफा और आंखें मुतासिर हो सकती हैं। डॉक्टर यदुल्ला ने मजीद कहा कि शहरी मास्क और ऐनक का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कम कुव्वत मुदाफ़त रखने वाले अफराद अच्छी खुराक, ड्राई फ्रूट और कहवे का इस्तेमाल करें। स्कूलों और कॉलेजेस में हफ्ते को छुट्टी होगी या नहीं, महकमा स्कूल एजुकेशन फैसला ना कर सका। अदालती अहकाम के बावजूद छुट्टी के हवाले से गुमगू की सूरत हाल बरकरार है। स्मोक की वजह से हफ्ते के रोज़ स्कूल और कॉलेजेस बंद करने के अहकाम जारी किए गए थे। महकमा स्कूल और हायर एजुकेशन के हुकाम का कहना है कि ताहाल अदालती अहकाम मौसूल नहीं हुए। छुट्टी का फैसला वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर होगा। बुलेटिन में बात करेंगे डेंगू वायरस के हवाले से। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 74 डेंगू के नए मरीज सामने आ गए हैं। रवां साल लाहौर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 5000 से तजावुज़ कर गई है। लाहौर के हस्पतालों में डेंगू के 85 मरीज ज़ेर इलाज हैं। डेंगू के मरीजों में इजाफा होने लगा। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 74, जबकि सुबह भर में 138 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक। लाहौर के हॉस्पिटल्स में इस वक्त डेंगू के 85 मरीज ज़ेर इलाज। रवां साल लाहौर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 5225 हो गई। रवां साल पंजाब के 36 अजला में डेंगू के 11863 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान नारोवाल, मुजफ्फरगढ़, उकाड़ा, सियालकोट, चकवाल, रहीम यार खान और टोबा टेक सिंह में डेंगू का एक नया मरीज सामने आया। पंजाब भर के हॉस्पिटल्स में इस वक्त डेंगू के कुल 140 मरीज ज़ेर इलाज हैं। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान का कहना है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ रखें और महकमा सेहत की टीमों के साथ ताउन करें। पंजाब यूनिवर्सिटी में एकेडमिक कौंसिल और सैनेट के इंतखाबात। एकेडमिक कौंसिल के नताइज के मुताबिक एकेडमिक फ्रंट ने 7 में से 6 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली। एकेडमिक फ्रंट ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर साजिद रशीद का कहना है कि पहले भी यूनिवर्सिटी की बहबूद के लिए काम किया और आइंदा भी करते रहेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सजाद हुसैन पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी सजाद, बताइए। बिल्कुल जी, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो इंतखाबात एकेडमिक कौंसिल के जारी थे, उसके नताइज के बाद जो है एकेडमिक फ्रंट ने 7 में से 6 सीटें जो हैं वो जीत ली हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की 2 सीटें, असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 सीटें और एकेडमिक कौंसिल ने जो है वो लेक्चर की 3 में से 2 सीटों पर जो है वो बर्तरी हासिल कर ली है। इस वक्त हम जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। लेक्चर की सीट पर जीतने वाले शाइस्ता नहीद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, जी आप जीत चुकी हैं तो क्या आपके तासरात हैं इस वक्त? मैं एकेडमिक फ्रंट की तरफ से फ़ीमेल लेक्चरर कैडर पर मैंने विन किया है और एकेडमिक फ्रंट जो है ये अरसा दराज से पंजाब यूनिवर्सिटी की फ़लाह के लिए काम करता रहा है और इंशाल्लाह हम उनके काम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। बिल्कुल, इस वक्त एकेडमिक फ्रंट के जो चेयरमैन हैं साजिद रशीद साहब, वो भी हमारे साथ हैं। साजिद साहब, ये बताएं, बहुत मुबारक हो, आपको कामयाबी हुई है, तो आपकी क्या इस वक्त तासरात हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद अपनी पूरी कम्युनिटी का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से क्लीन स्वीप है। एक सीट वो भी हमारे 11 वोट जो है मुस्तरद हो गए हैं, जिसमें से 6 की वजह से हम सिर्फ हार गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमिक फ्रंट मिलकर इस यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए काम करेगा और असातिज़ा की भरपूर जो है ना नुमाइंदगी कर रहा है और इंशाल्लाह करता रहेगा। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि हम पहले भी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए काम करते रहे हैं और जीत के बाद भी इंशाल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए कामयाबी के लिए जो है वो काम। ठीक है, बहुत शुक्रिया सजाद।
पंजाब में 9 मॉडल ज़रई सेंटर्स के क़याम का असूली फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हतमी प्लान तलब कर लिया। तारीखी हवेली खड़क सिंह के कमरों को भी बहाल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब में 9 मॉडल ज़रई सेंटर्स के क़याम का असूली फैसला। निगरान वज़ीर आला ने ज़रई सेंटर्स का हतमी प्लान तलब कर लिया। ज़रई सेंटर्स में काश्तकारों को तमाम सहूलतें एक छत तले मैसर होंगी। किसानों को बीज, खाद, अद्वियात और आलात फराहम किए जाएंगे। इजला में भी मरहलावार मॉडल ज़रई सेंटर्स कायम किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। तारीखी हवेली खड़क सिंह के कमरों को बहाल किया जाएगा। हवेली में सियाहों की रिहाइश के लिए मयारी सहूलतें फराहम की जाएंगी। मोहसिन नकवी की रिम मार्केट की मुंतकली के लिए जरूरी इकदाम करने की हिदायत। लाहौर के तारीखी दरवाजों और किला कहना कासिम बाग मुल्तान की बहाली के प्रोजेक्ट को बर वक्त मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर के दरवाजे और किला कहना कासिम बाग मुल्तान का तारीखी विरसा है, भरपूर तहफ़्फ़ुज़ देंगे। इजलास में माल रोड की कदीमी हैयत की बहाली के लिए पोल हटाने का भी फैसला किया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को बताया गया कि लाहौर के ब्रेडले हाल की बहाली के लिए काम तेजी से जारी है। बरकत अली इस्लामिया हाल की तारीखी हैसियत को असल हालत में लाया जा रहा है। लाहौर की 120 यूनियन कौंसल्स में कंप्यूटर्स की अदम दस्तियाबी, पैदाइश, अमवात, निकाह समेत दीगर सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज ना हो सके। सर्टिफिकेट रुकने से बच्चों के बेफॉर्म इल्तिवा का शिकार हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। महकमा बल्दियात पंजाब का नारा खिदमत आपकी दहलीज पर दम तोड़ने लगा। लाहौर की 274 यूनियन काउंसिल्स में 120 यूसीज ताहाल कंप्यूटराइज न हो सकी। मुसद्दिका कागज न होने से निकाह, तलाक, पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट 2 माह से इल्तवा का शिकार। 15,000 दरखास्तें अमल दरामद की मुंतजिर हैं। लाहौर की 120 यूनियन काउंसिल्स में कंप्यूटर मौजूद नहीं। 2 माह गुजर गए, सर्टिफिकेट नादरा पर ऑनलाइन न हो सके। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का कहना है कि टेक्निकल वजूहात की वजह से सर्टिफिकेट इजरा के मसाइल आ रहे हैं। जल्द शहरियों की शिकायत का अजाला होगा। और अभी आपको बताएं कि शहर में ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए एलडीए की अनोखी मंतक सामने आ गई। नए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के बजाय पुराने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजीद ट्रैफिक लोड डालना शुरू कर दिया गया है। फिरोजपुर रोड से रायविड रोड तक की आबादियों के लिए नई सड़क की तामीर का मंसूबा बंद हो गया। मजीद तफसीलात ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। शहर लाहौर में ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए एलडीए का नया फार्मूला सामने आ गया। नए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के बजाय पुराने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही मजीद ट्रैफिक लोड डालना शुरू कर दिया। गुज़श्ता बरसों में नए स्ट्रक्चर प्लान रोड्स के मंसूबों को ड्रॉप किया गया। पहले से मौजूद सड़कों पर अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स बनाने को तरजीह दी गई। फिरोजपुर रोड से रायवन रोड तक की आबादियों के लिए नई सड़क की तामीर का मंसूबा बंद हो गया। पंजाब हुकूमत के अहकामात पर एलडीए ने स्ट्रक्चर प्लान रोड की फाइल बंद कर दी। लिंक कनेक्शन फिरोजपुर रोड से पाइन एवेन्यू मंसूबे को भी शुरू करने की इजाजत न मिल सकी। स्ट्रक्चर प्लान रोड फिरोजपुर रोड से पाइन एवेन्यू की अवामी सुनवाई भी 15 जुलाई को हो चुकी है। माहौलियात से एनओसी के हसूल के बाद मजीद कोई पेशरफ्त न हुई। सड़कों की तामीर के लिए 2 अरब 80 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। ताहम अब मंसूबे रवा दौर में शुरू न होने से लागत में मजीद इजाफा होगा। मंसूबे से फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन, टाउनशिप, मौलाना शौकत अली रोड और वाबडा टाउन की आबादियाँ मुस्तफीद होंगी। सदरन बाईपास, पाइन एवेन्यू और रायवन रोड की आबादियाँ भी इस्तेफादा कर सकेंगी। महंगाई के वार जारी हैं। सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी बदस्तूर जेब पर भारी है। इंतजामिया सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। अवाम कहते हैं गिरां फरोशों को कोई पूछने वाला नहीं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। होशरुबा महंगाई वबाल जान बन गई। सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत बदस्तूर पहुंच से दूर। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियों के दाम मजीद बढ़ा दिए गए। ओपन मार्केट में टमाटर 230, प्याज 150, अदरक 800 रुपए फी किलो, लहसुन चाइना 660, सब्ज मिर्च 100, लीमू 80 रुपए फी किलो तक मिल रहे। बैंगन, फूल गोभी 50, भिंडी 100 और मटर 250 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे। फलों में सेब 400 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। सिंहपुरा सब्जी मंडी में आए खरीदारों का कहना है कि महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। सरकारी रेट लिस्ट को कोई दुकानदार खातिर में नहीं लाता। यहाँ पर भी रेट वही सेम मिल रहे हैं जो बाहर मिल रहे हैं। तो ये गाजर खरीदी है, ये 80 रुपए किलो है और ये जो बंद गोभी है 150 रुपए किलो दे रहे हैं। कंट्रोल करेंगे तो गरीबां नूं कुछ खाण नूं मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। किहड़ी चीज़ कोई सस्ती मूलियां जिहड़ियां ने आम मूलियां हुंदियां ही, वो भी मूली भी 100 रुपए किलो मिल रही है। दूसरी जानिब ब्रायलर गोश्त 7 रुपए कमी के बाद 470 रुपए फी किलो हो गया, जबकि अंडों की सरकारी कीमत 329 रुपए फी दर्जन है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।